हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम करेंगे मेजर लैंड फॉर्म एंड देयर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, यानी प्रमुख स्थल रूप और उनका जो है आर्थिक महत्व। ये कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, एनआईओएस को हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उनके सिलेबस में जो है मेजर लैंड फॉर्म एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आज जो हम करेंगे पठार, पर्वत और मैदान के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में भी समझेंगे। लेकिन आपको पता है ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here a major landform and there is economical significance. There is a next point and the next topic here is the most important here, a plan. The plan here a most important landform found in the earth's surface. A low lying relative to flat and slightly rolling land surface with the very gently slope and the minimum local relief is called a plan. The plan here, a flat, slightly rolling land surface, a very gently slope. A maximum local relief is called plan. Plants occupy about 55% of the earth as a surface. Most of the plants has been formed by the deposition of the sedimentaries, both down by the river. Beside the river, some plants have also been formed by the action of the winds, moving ice, tectonic activities, and plants has an average height of the less than 200 meters. That is the most important. And the important here, a low-lying, relative flat and slightly rolling land surface with a very gently slope and minimum. That is a local relief is called a plain. That is the most important here. The next topic here are types of plan. That is the most important here. What is the types of plan here? The plan can be classified into the following types. There is a first here structure plan, erosional plan, and depositional plan. There is the most important here are three types. The first here structural plan. The structural plan here, this plan are mainly formed by the uplift of the part of the sea floor or continental shelf, and these are located on the borders of the almost all the major continent and the southeastern plan of the United States formed by there is uplifted of part of the Gulf. Mexico is an example of the types of plan, and the structure plans may be also be formed by the subsidence of area. Once the plan is a central lowland of the Australia, that is the most important here. And next year, erosional plan, that is the most important, and these plans are formed by a continuous and a long time erosion of all shoulder of the upland. The surface of such a plan is hardly smooth, and these are therefore also called pan plans, and which mean almost a plan. The Canadians and the studied and there is the best Siberian plan are example of the original plan.
There is an important here. The plan formed by the uplifted earth subsidence on the area is called a structural plan, and the plan formed by the continuous long-term erosion of land is called erosional plan. There is the most important here. The next here is depositional plan. The fragment of the soil, regolith, and the bedrock that is removed from to parents rock marks and transported and deposited to the is where they make an entirely different set of surface feature. The depositional is a landform when the plants are formed by the river deposit. They are called to the riverines and available plan. The Indo-Genetics plan of the Indian subcontinent, the Havaho plan is in northern China. There is a Lombardy plan of Po River is Italy, and there are Ganga Brahmaputra Delta plan is a Bangladesh are example of the Albion plan. There is the most important. The deposition of the sedimentary in a lake give a rise to the Lecturians plan or the lake plan. There is a valley of the Kashmir, and that is a Manipur are example of two most of permanent Lecturians plan in India. When the plan is formed by the glacier is deposited, they are called a glacier or draft plan. A plan is Canada and the northern western Europe are example of glacier plan. When the winds is the major agent of deposition, and they are called loose plan. The loose plans of the northern western China are formed by the deposit of the loss of airborne fine dust particle. That is the most important. And the point here, depositional plan are formed by the deposition of the sediment both and down of the river is a glacier and wind. And next here, depositional plan are subdivided into the avils, lecturines is a glaciers and the loss of plan. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम आपको पता ही है कि हम प्रमुख्य जो है सलरूप और उनका आर्थिक महत्व के विषय में जो है चैप्टर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग जो हमारा अगला टॉपिक आया है मैदान। देखिए, मैदान कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। धरातल पर पाई जाने वाले समस्त जो है संस्कृतियों के मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी धरातल पर पाई जाने वाली समस्त जो है संस्कृतियों में मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ जो है इंसान रहते हैं। अंतिम जो है मध्य ढाल वाली लगभग सपाट और जो है लहरीला विभिन्न भूमि का मैदान कहते हैं, और मैदान धरातल के लगभग 55% भाग पर फैला हुआ है। देखा जाए तो 55% जो है काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है, और संसार के अधिकांश मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाए गए हैं। यानी संसार के अधिकांश मैदान जो है मिट्टी द्वारा जो नदियों द्वारा मिट्टी जो लाए जाते हैं उसके द्वारा बनाए गए हैं। मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर होती है, यानी 200 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। नदियों के अलावा कुछ मैदान का निर्माण जो है वायु, ज्वालामुखी और हिमानी द्वारा भी होता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है कि इसकी मैदानों का जो निर्माण होता है वायु, ज्वालामुखी और हिमानी द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। अति मध्य ढाल वाली लगभग सपाट और शहरी निम्न भूमि को जो है मैदान कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन के रूप में इसको याद कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष मैदान का वर्गीकरण। देखिए, मैदानों का वर्गीकरण के रूप में अगर हम देखें तो बनावट के आधार पर मैदान का वर्गीकरण निम्न प्रकार हो सकता है। पहला तो यही होगा संरचनात्मक मैदान, अपर्दन द्वारा बने मैदान, निक्षेपण द्वारा बने मैदान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संरचनात्मक मैदान। यानी संरचनात्मक मैदान क्या है? कहते हैं इन जो है मैदानों का निर्माण मुख्यतः सागरीय तल अथवा जो है महाद्वीपीय जो है निम्नगमन तट के उत्थान के कारण हुआ है। कहते हैं ऐसे मैदान प्राय सभी महाद्वीपों के किनारे पर मिलते हैं। मेक्सिको की खाड़ी से सहारे फैली संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भूमि के निचले धंसने के कारण भी जो है संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो है मध्यवर्ती मैदान का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। तो संरचनात्मक मैदान जो है कई मायने में कई क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अपर्दन द्वारा बने मैदान। देखिए, अपर्दन द्वारा कैसे मैदान बनते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जो है निरंतर अपर्दन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। देखा जाए तो पृथ्वी पर धरातल पर जो है अपर्दन की प्रक्रिया चलती ही रहती है, जिससे जो है दीर्घकाल में पर्वत तथा पठार, नदी, पवन और हिमानी जैसे कारकों द्वारा घिस कर मैदानों में परिणत हो जाते हैं।
और इस प्रकार बने मैदान पूर्णतः समतल नहीं होते हैं, कठोर शैलों के ढीले बीच बीच में खड़े रहते हैं। उत्तरी कनाडा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान अपर्दन द्वारा बनाए मैदान है। अपर्दन द्वारा बनाए मैदानों की जो है संप्राय भूमि जो है पेनिप्लान भी कहते हैं, इसे हम पेनिप्लान भी कहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है, निक्षेपण द्वारा बने मैदान। आखिर निक्षेपण द्वारा कैसा मैदान बनता है? ऐसे मैदान का निर्माण जो है नदी, हिमानी, पवन आदि तथा जो है संतुलन के कारकों द्वारा ढोले अवसादों से, झील या समुद्र जैसे गतों के भरने से होता है। यानी मान लीजिए अगर बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ आ रहा है तो गाढ़ के कारण क्या होगा, बड़े बड़े क्षेत्र जो होंगे भर जाएंगे, और भरने से जो है इस तरह का जो है मैदान का निर्माण होना स्वाभाविक बात है। कहते हैं झील या समुद्र जैसे गतों के भरने से ही ऐसा होता है। जब मैदानों का जो है निर्माण नदी द्वारा ढोए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम नदीकृत या जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जलोढ़ मैदान। अगर आपको समझ में आ गया होगा, जलोढ़ मैदान बहुत आसान है कि अपने साथ जो है कई तरह के जो है गत लेके आते हैं, तो ये धीरे धीरे भरते रहते हैं, और भरे हुए जो क्षेत्र होते हैं जो इससे बनते मैदान है उसे ही हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी चीन में जो है हंगोहो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बनाया गया लोम्बार्डी का मैदान, और बांग्लादेश का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदान जलोढ़ मैदानों के विशेष उदाहरण हुआ है, जो कि इसी तरह के बनाए गए मैदानों में से एक है। जब मैदानों का निर्माण झील में अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम सरोवरी या झील मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सरोवरी या झील मैदान कहते हैं। कश्मीर और मणिपुर की घाटियाँ भारत में सरोवरी मैदानों के सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कश्मीर और मणिपुर की घाटी भारत जो है सरोवरी मैदान सबसे इम्पोर्टेंट और जो है अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा ढोए पदार्थों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम हिमानीकृत या हिमोड मैदान भी कहते हैं, क्योंकि हिमानी द्वारा ढोए गए कारणों से होता है, इसलिए इसको हम हिमानीकृत या हिमोड मैदान कहते हैं। कनाडा और उत्तर पश्चिमी यूरोप के मैदान हिमानीकृत मैदानों के सबसे अच्छा उदाहरण है। जब निक्षेपण द्वारा प्रमुख कारक पवन होते हैं तो उसे लोएस मैदान बनते हैं। उत्तरी पश्चिमी चीन के जो है लोएस मैदान का निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए जो है सूक्ष्म धूल कणों के निक्षेपण से हुआ है, जो कि काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर सारांश के रूप में देखा जा सकता है कि महाद्वीपीय जो है निम्नगमन तट के उत्थान अथवा भूमि के निचले धंसने के कारण बने हैं मैदान को जो है हम सृजनात्मक मैदान कहते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सृजनात्मक मैदान किसे कहते हैं? जो महाद्वीपीय निम्नगमन तट के उत्थान और भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदानों को हम सृजनात्मक मैदान कहते हैं। पर्वत और पठारों के लंबे समय तक अपर्दन से बने मैदानों को अपर्दन जनित मैदान या संप्राय भूमि भी कहलाती है। नदी, हिमानी, पवन आदि तल जो है संतुलन के कारकों द्वारा ढोए पदार्थों के जमाव से बने मैदानों को निक्षेपण द्वारा बने मैदान भी कहते हैं। निक्षेपण द्वारा बने मैदानों के प्रकार हैं जलोढ़ मैदान, सरोवरी मैदान, हिमानीकृत मैदान और लोएस मैदान। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट मैदान है जो कि निर्माण इसी कारणों से होता है। The next important topic here is the most important economical value of plant. That is the most important. The first here point arrive here of fertile soil. That is the most important. Fertile soil here, the plant is generally have a deep and fertile soil. Fertile soil is sign to plant have a flat surface, the means of irrigation are easily developed. Both these factors have made the plant agriculturally so important and that they are often called food basket of world. What is it called here? Food basket of the world. Then who is the fertility soil? And the next here, growth of industries. The rich agriculture resource, especially of aluminum plants, have helped in their growth of agro-based industry. Agro-based industry is the growth by their growth of industries in the agriculture is aluminum plant. And this has been to implement of the millions of people and the registered as a market, increasing in the national production and per capita
income. So the plans are a thinkly is populated, plenty of labor is available for their intensive of cultivation and the supplying workforce for the industries. There is a most important for the growth of industry by the plan. And the next year expansion of the means of transport. That is also important. Since the plans has on even surfeit is a favor it the buildings of road, airport and the lining down of the railway lines. That is the most important. The next year is a center of civilization. There is also important here of economical value of plan. There is a center of civilization. The plan has been to the center of many modern and ancient civilizations. The major river valley of civilization of the world have flourished in their plan only. Hence, they are apt to the refer to as the cradles and civilization. For the example, there are civilization of the Indo and Nile Valley. There is the most important for a center civilization. The next important here are setting up to city and town, easy mean of transport and land. The growth of agriculture and industry in the plan has been resulting in the setting up to the expansion of city and town. There are most developed trade centers and sport of the world are found in the plan only. Rome, Chaco, Calcutta, Yangon and Rango as well as Varanasi, Paris and other famous cities are situated in the plan. As much as 80% of the world has a population live in the plan. That is the most important setting of the cities of town. That is also important. And the point here, the plans are useful to the man due to their fertile soil, growth of industries and development of transport, setting up to city and town and making them attractive as a cradles of human civilization. That is the most important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर मैदानों का आर्थिक महत्व। अब देखिए मैदानों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो मैदानों का आर्थिक महत्व जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम सब जो है मैदानी क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं और कहते हैं अधिक से अधिक सिटी जो होती है मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं जहाँ पर लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही आ जाता है कि उपजाऊ मृदा यानी मिट्टी उपजाऊ होती है। मैदानों की जो मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ तथा जो है गहरी होती है और समतल होने के कारण सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास हो जाता है और इन दोनों कारणों से मैदानों में कृषि सर्वाधिक विकसित होती है। इसलिए मैदानों को संसार का अन्न भंडार भी कहा जा सकता है। यानी अन्न भंडार किसे कहते हैं, जो है उपजाऊ भूमि मृदा को, जो कि मैदानी भाग होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उद्योग का विकास। देखिए उद्योग का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं समतल उपजाऊ एवं सिंचाई की सुविधाओं के कारण मैदानों में कृषि प्रधान उद्योग का विकास हुआ है, जिससे लोगों के रोजगार मिलता है तथा राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी मात्रा में बढ़ती है। अधिक जनसंख्या के कारण जो है कृषि तथा उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक भी यहाँ पर जो है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है यातायात की सुविधाएं। कहते हैं मैदानों का तल जो है समतल होने के कारण यहाँ जो है आवागमन के साधन रेल मार्ग, सड़कें, हवाई अड्डे आदि का बनना जो है सुविधाजनक होता है, तो इसलिए जो है मैदानी क्षेत्र का इतना अधिक महत्व भी रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष सभ्यताओं के केंद्र। देखिए मैदान जो है प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यताओं के केंद्र के रूप में देखा जाता है। विश्व के प्रमुख नदी घाटी जो है सभ्यताओं का उद्भव मैदानों में से ही हुआ है। यानी देखा जाए तो जितना भी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो सारे के सारे जो है मैदानी क्षेत्र से हुआ है, क्योंकि इसे घाटी सभ्यता का उद्भव कहा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता और नील घाटी सभ्यता इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल माना जा सकता है। यदि बात करें हम अगली पॉइंट की, तो यही बात दर्शाता है कि नगरों की सभ्यता। कहते हैं रेल, सड़क तथा नदियाँ द्वारा जो यातायात की सुविधाओं तथा कृषि और औद्योगिक विकास ने नगरों की जो है स्थापना और विकास को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। मैदानों में विश्व के सबसे विकसित व्यापारिक नगर और पतन स्थित होती है और रोम, टोक्यो, कोलकाता, रंगून, कानपुर तथा पेरिस आदि इसी मैदानी में ही स्थित है। तो ये कई मायने में जो है इम्पोर्टेंट भी रखता है। अगर हम पॉइंट को यहाँ बात करें तो पॉइंट में यही बात दर्शाया गया है
कि मैदानों का आर्थिक महत्व क्या है। देखिए, समतल और उपजाऊ जो है मृदा की प्राप्ति, उद्योग के विकास की सुविधा, आगमन के साधनों के विस्तार की सुविधा, प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यताओं के केंद्र, व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों की स्थापना जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।